Hi. So last time when I made a video about how things were going on in my life, many people supported me and commented it on it that we are with you and then you can do this and etc. It really made my heart warm. But अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंसी मैं नहीं ला पाई एंड लोगों को अपडेट नहीं कर पाई कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है मेरी लाइफ में एंड ऑल. सो उस पॉइंट पे मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थी. लाइक डिप्रेस नहीं थी, लाइक वॉज नॉट क्लिनिकली डिप्रेस्ड और समथिंग, बट मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट थी बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस दैट वर गोइंग अराउंड इन माई फैमिली. सो उसकी वजह से आई वॉज रियली एग्जॉस्टेड एंड एट द सेम टाइम मेरी एकेडमिक्स में भी क्या सिचुएशन हो रही थी वो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था. एनीवेज, तो अब लाइक आफ्टर 4 months मैं फिर से एक लाइफ अपडेट वीडियो डाल रही हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स नीडेड कि मैं अपने वीडियो जर्नल्स करते रहूँ for myself and for if somebody is feeling the same way, they can also like come up with me, join me in this group and just trying to survive life. So right now, if I give you a life update, I am graduated and I did my BTech degree. I completed my BTech degree and उस बीच में I attended a very like romantic and dream-like wedding of my sister, so that is as well. And also like many things happened during this time window. Like within 4 months I started content creation in Instagram, which was very unexpected. I don't know how. like मैं नागपुर गई थी दूसरी एक और वेडिंग अटेंड करने एंड मैं वापस आ रही थी तब आई जस्ट टुक अ शॉट ऑफ दिस वेरी प्रिटी सनसेट एंड देन मैं ग्रेजुअली क्योंकि कोट पढ़ते रहती हूँ इधर उधर से, तो मुझे लगा कि ये कोट मुझे इसमें डालना चाहिए एंड देन आई कैन पोस्ट इट मे बी टू शेयर विद पीपल रेदर देन पुटिंग ऑन अ स्टोरी. आई शेयर्ड इट विद पीपल and surprisingly I felt this urge within me to post it again and again and again. I started posting like quote wale videos, but I got bored of it and I have a lot of thoughts in my mind which I really want to release and which I really want to tell people about. So I just did it. I started talking with phone and I posted it. I put on my thoughts on Instagram with my face, with whatever I'm saying. It was very unexpected, honestly speaking, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने स्मूथली स्लाइड इन कर जाऊंगी कंटेंट क्रिएशन में. मुझे लग रहा था कि इट विल टेक सम टाइम फॉर मी. मैं धीरे धीरे करके अपने आप को ग्रो करके आगे बढ़ूंगी, बट इवेंचुअली यू जस्ट नीड दैट बिट ऑफ अ पुश टू स्टार्ट इट. बिसाइड्स दैट फिर एक्चुअली पिछले दिसंबर के आसपास आई गॉट लाइक कोलैबोरेशन थिंग लाइक कैन you collaborate with us and then we can do content. Like it's related to how we can keep aware adolescent girls and how we can just keep aware in general every female around us. So yes, I did collaborated with them and I'm still in collaboration with them. We make videos and also it's for like a charity. I'm not taking any money from them. They are also not giving me any money for it, and we are just collaborating and just I don't know where it is going ahead. Like honestly speaking, I think I am having fun and that's what matters. So yes, that is something which I am going through right now. तो उन्होंने मुझे दिसंबर में मैसेज किया था, तो वो भी मेरे बैक ऑफ द माइंड में था कि अगर ये मुझसे कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं दैट मीन्स कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा. सो मैं ऑलरेडी उस जोन में पहुंच चुकी थी बाय मार्च एंड मैं चली ही गई फिर उस जोन में एंड I never came back from it. Like it feels good to be on camera, to just share my thoughts and still there are days जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन हो जा रही थी. like I don't know, but
it felt like, is it going somewhere or not? Like, am I getting somewhere? Because people really like cheap, not cheap, but like very funny content. They don't have good attention span to watch something which can benefit them, which can expand their thoughts. So anyways, this is it. So yes, I'm still doing content creation. That is one thing that I got. And after that, वो स्पेसिफिक चीज़ हुई मेरी लाइफ में विद इन दीज मंथ्स. एंड उसके अलावा आई थिंक मैं थोड़ी और ग्रो हुई. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर एबल टू सी द डिफरेंस विद इन मी और नॉट, बट it's crazy that things are changing very fast. Also, I did I was not harshly physically active while these months, but at the same time I was quite physically active. like I used to do activities जैसे कि बैडमिंटन खेल लिया, कभी स्विमिंग कर लिया, कभी रनिंग का शुरू किया था बीच में मैंने रनिंग भी की. सो आई एम नॉट कंसिस्टेंट ओवर वन सिंगल थिंग, बट आई एम स्टिल डूइंग थिंग्स हियर एंड देयर, जिसकी वजह से स्किन भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है. दीज आर लाइक बिकॉज ऑफ माई पीरियड्स, सो इग्नोर दैट. एंड मेरा वेट भी काफ़ी लॉस हुआ तो है, लाइक सरप्राइजिंगली वेट भी काफ़ी लॉस हुआ है. एंड let's see उसका क्या होता है. and also I'm trying to eat good and clean as well, which is very hard for me because एक college student होकर वो चीज़ करना थोड़ा टफ हो जाता है. but still अब क्योंकि मैं graduate हो गई हूँ तो I'm doing it. Another thing that happened while these span of months is that I qualified GATE. I took GATE एंड उसकी प्रिपरेशन मैं कर ही रही थी, बट ठीक ठाक ही चल रही थी. लाइक आई वॉज ट्राइंग टू क्रैक इट. आई क्वालिफाइड इट लाइक किसी छू के, बट स्टिल इट गेव मी अ रे ऑफ होप दैट इफ़ आई गिव माई 100%, इफ़ मैं बस कूद जाऊँगी उसमें और मैं और कोई काम नहीं करूँगी एक्सेप्ट कंटेंट क्रिएशन, तो शायद मैं वो अचीव कर सकती हूँ जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरा विजन है. तो आई टुक अ चांस and I'm taking sort of a gap year right now. Like I'm gonna do internship, but ये पूरा जो टाइम है ये मेरा gap year है. So yes, this is it. Another thing, and it really actually gave me a lot of confidence. Like मेरे faculty members मुझसे पूछ पाछ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा था. Anyways, so this is one thing. Also मैंने उस वीडियो में काफ़ी बार नहीं है कि मैंने मेंशन किया था कि मैं शिफ्ट होने वाली हूँ इस घर से, जिस घर में लिटरली मैंने अपनी पूरी लाइफ बिताई है. उसके लिए पर्सन वाज आस्किंग कि क्या है रीज़न, लाइक शादी वादी तो नहीं है एंड ऑल. सो नहीं यार, ये तो बिल्कुल भी रीज़न नहीं हो सकता बिकॉज आई एम स्टिल यंग. Just kidding. It's not about being young. It's about just I don't want to get married soon or like ever. Anyways, तो शादी इसका रीज़न नहीं है. इसका रीज़न है कि मैं परमानेंटली शिफ्ट हो रही हूँ फ्रॉम दिस हाउस टू अ न्यू हाउस. ये घर जो है बेसिकली, लेट मी जस्ट क्लियर इट आउट कि एग्जैक्टली सीन हो क्या रहा है. सो जो ये घर है ये मेरे दादाजी का घर है. लाइक जब मेरे पापा एंड उनके भाई सब जब छोटे थे तब दादाजी ने घर बनाया था एंड दे यूज्ड टू लिव हियर. एंड दादाजी ने शुरू से ही 4 हिस्सों में बांट दिया था बिकॉज देयर आर 4 brothers. सो ड्यू टू अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इन स्टफ्स, my father backed off and gave up on this house because of like other people were asking. I obviously can't say it out loud ऐसे internet पे, but it was quite of a conflict basically. तो बहुत चीज़ें होने के बाद and सब कुछ होने के बाद my father took a decision a year ago that we need to shift in our own house. So my father from scratch took a decision, took a plot एंड उन्होंने फिर एकदम शुरू से शुरू करके अपना घर बनाया है. घर बन चुका है एंड हम आई गेस विद इन अ वीक शिफ्ट भी हो सकते हैं वहाँ पे.
तो यस, उस वीडियो में मेरा कहने का मतलब ये था. एंड like obviously I can't give you all the details, but I'm really proud of my father. He took this decision क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी नए घर की. इस घर में it felt like it's not gonna work out. And another thing is that मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बोला था कि प्लीज़ इस घर को रखना, let's keep this house intact. But बिकॉज इसके ओनर सिर्फ मेरे पापा नहीं हैं, तो दैट्स वाई इट टुक अ टर्न. एंड राइट नाउ यस, वी आर मूविंग इन टू अ न्यू हाउस. वी आर नॉट डूइंग इट वेरी लाइक, वी आर नॉट डूइंग एनी पार्टीज एंड स्टफ, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी दादी की डेथ हो गई है. सो यस, उसके वजह से आई थिंक हम ज़्यादा कुछ तो नहीं करने वाले. इट्स जस्ट पूजा एंड ऑल. सो एंड इट्स ऑल्सो लाइक लिटरली अराउंड द कॉर्नर. सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट गृह प्रवेश वीडियो, होम टूर, और just want to watch me decorating my room and then showing it to you guys, please comment. I don't know कि कितने लोग ये वीडियो देखे होंगे. अभी जितने लोगों ने उस वीडियो में कमेंट किया था वो लोग इसमें होंगे भी कि नहीं होंगे, बिकॉज मैं बहुत इनकन्सिस्टेंट क्या, मैं तो कुछ डाल ही नहीं रही थी. लिटरली मैंने बंद ही कर दिया था. लाइक आई डिड 75 हार्ड एंड आई ऑल्सो लाइक उसको भी कंप्लीट नहीं किया मैंने. बट स्टिल आई एम मैनिफेस्टिंग ऑल द पीपल इन दिस चैनल जो कि मुझसे रिलेट कर पाए, मेरी एज में हो या नहीं भी हो, तो स्टिल मुझसे रिलेट कर पाए. एंड जितने भी लोग उस वीडियो में कमेंट किए थे, आई होप वो भी ये वीडियो देखे, ताकि जस्ट एक आई डोंट नो सॉर्ट ऑफ एक कनेक्शन बना रहा है, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट मैंने निभाई नहीं बिकॉज आई वॉज मेंटली वेरी फक्ड अप. सो येस, सो इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू वॉच दैट वीडियो, एक्चुअली मैं तो डालने वाली हूँ, लाइक मैं डालूँगी, डेफिनेटली डालूँगी. एंड आई होप पीपल वॉच इट. एंड मैं अपना होम टूर भी दूँगी, एंड उसी के साथ साथ मेरा जो रूम मैं डेकोरेट करने वाली हूँ उसकी भी पूरी प्रोसीजर डालूँगी, एंड उसका भी रूम टूर डालूँगी. सो आई एम रियली एक्साइटेड. मैंने जितने भी अभी तक यूट्यूबर्स देखे हैं, मोस्टली मैंने ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो कि यू नो माई होम टूर, माई रूम टूर एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड अब वो मेरा भी ड्रीम पूरा हो रहा है. एंड ऑल्सो यस, एक और चीज़, ये जो घर है ये 40 ईयर्स पुराना है. दैट मीन्स कि हम इसको अभी तक इंटैक्ट रख पा रहे हैं बिकॉज हमने हमारे सिस्टम्स एंड जुगाड़ क्रिएट करके रखे हैं. तो इफ़ यू गाइज वॉन्ट अ होम टूर ऑफ दिस ओल्ड हाउस एज वेल, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज ऑल्दो मैंने इस घर का पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है, सो इट्स ऑलरेडी रेडी. सो येस, इफ़ यू गाइज वॉन्ट, ये घर का पूरा हाउस टूर मैं देना चाहूँगी. एंड कहीं कहीं जगह तो ऐसी भी है जो कि सालों साल से लिटरली सेम है, जहाँ पे हमारे नाम लिखे हुए हैं पेंसिल से रैंडमली, एंड काफ़ी कुछ है. लाइक इट्स लाइक वेरी होलसम. सो येस, ये है एक अनदर अपडेट. येस, एक और अपडेट ये है कि आई गॉट अ न्यू फ्रेंड. येस, like I don't know if it's pretty soon or not, but we are like soulmates in my opinion. We have so many things in common. It's like we met for the first time कुछ दिन पहले, and we talked for like 4 hours straight. कैफे में बैठे हुए हैं, पेंट कर रहे हैं, और हम बस बात करे जा रहे हैं. So this is also a very cute and new update. I hope we become good friends, and let's see where life takes us. सो येस, दिस इज़ इट. हाँ, ये सारे अपडेट्स हैं मेरे लाइफ के करेंटली. एंड अबाउट माई फीलिंग्स, इस मोमेंट में मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है. इनफैक्ट ये साल की शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि लाइफ बहुत क्रेजी वे में चेंज हो रही है. पहले तो दादी की डेथ हो गई, which was not something we like, it is unfortunate. and उसके बाद फिर मेरी बहन की शादी हो गई, which is like
it was very unexpected. A year ago we got to know that she is going to get married, and it was also a whole roller coaster. So that happened, and so yeah, like many things happened. There are more personal things which also changed. So yes, so these are things that changed, and I'm glad that things are changing in my life. I'm growing as person, and yes, अभी तो currently मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील कर रही हूँ, बिकॉज मैं थोड़ा like it's a bitter sweet feeling. इस घर को छोड़ना जो कि एक comfort zone है, एक दिल से जुड़ी हुई चीज़ है, एंड एक नए घर में जाना जो कि एक न्यू बिगनिंग है, न्यू स्टार्ट है, एंड बहुत एक्साइटिंग है एंड बहुत मॉडर्न है. लाइक हम जिस सिचुएशन में इस घर में रहे हैं, अगर हम उस घर में जा रहे हैं तो वो घर हमारे लिए होटल से कम नहीं है. सो लिटरली दिस इज़ ऑल्सो इट. तो यस, ये सारी चीज़ें हैं, एंड मैं अपना बेस्ट दूंगी. नए घर में जाते साथ आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट माई होल कंटेंट क्रिएशन स्टफ. आई एम गोना डू यूट्यूब, आई एम गोना डू यूट्यूब शॉर्ट्स, आई एम गोना डू इंस्टाग्राम, एंड आई एम गोना बी कंसिस्टेंट सो दैट you know I can give to you guys and to many other people some value out of my mind and out of my life. Also this video, I don't know if it gives you value or not, but I am sure it must be relatable to many people कि कैसे हम हमारे you know like 20s में इतने सारे changes के थ्रू जाते हैं. उसको प्रोसेस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम कर नहीं पाते हैं. सो currently I'm processing with you guys, and I hope if you guys are in your 20s or maybe late 20s, I hope you guys are moving forward and not looking back at your past and just focusing on your work, on your career and अपने आप पे. career और work तो फिर भी जाने दो, but at least अपने आप पे you guys are focusing like top notch. So yes, this is it. आई थिंक मैंने 20 मिनट जो बड़बड़ किया है वो यही है. ऑल्सो वन मोर अपडेट, मेरा फेयरवेल हुआ विच वॉज नॉट गोइंग टू हैपन, क्योंकि हमारे फैकल्टी मेम्बर्स ने बोल दिया था कि आपका फेयरवेल भी नहीं होगा और कॉन्वोकेशन तो वैसे भी मेरे कॉलेज में नहीं ही होता है. सो लाइक वी वर रियली सैड, बट इट हैपेंड लाइक, and also I became Miss Farewell, which was very unexpected, क्योंकि I was wearing literally like a normal साड़ी जो कि मेरी मम्मी की थी, and I don't know, like I know that it's not on the basis of looks, it's also on the basis of very different things. I hope so. They didn't give me because of, I don't know what to say, it's very complicated, but what I'm trying to say is I wore a very simple sari of my mother, and it was really pretty sari, and I'm damn sure that sari got me Miss Farewell, so I'm glad for that as well. And we danced, like मेरे friends और हमने ऐसे dance prepare किया था, and we did a cute dance out there. It was very embarrassing but very fun, and so yeah. And also फैकल्टी मेंबर के सामने, ओके दैट्स अ टू मच ऑफ अ TMI, आई कांट गिव इट, लाइक मे बी इन सम अदर टाइम, लाइक फॉर अभी थोड़ा कनेक्शन बन जाए, फिर आई टेल अबाउट इट टू यू गाइज. सो येस, I hope you guys are doing well. I hope you guys are happy and healthy, and I am also currently happy and healthy. Mentally I am still growing as person. उस वीडियो में जो मैं थी उससे मैं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ, and still somewhere or the other लाइफ में अनसर्टेनिटी आती रहेगी, but उतना मुझे नहीं गिरना है, and उतना मुझे अपने आप को नहीं गिराना है मेंटली. सो येस, वो था डे 0. ये कौन सा डे है? ओके, दैट वाज डे 0. आई थिंक दिस मस्ट बी डे. ऑल्सो पिछले वीडियो में आई मैंशन्ड कि कैसे मेरी मेंटल स्टेट है, कैसी लो वाइब्रेशनल फीलिंग्स है मेरे अंदर, जिसके वजह से लाइफ में कुछ अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रही हूँ.
वो उस दिन मैं बहुत ज़्यादा हार गई थी. लाइक आई डोंट नो कैसे, बिकॉज लोगों की लाइफ में बहुत मेजर क्राइसिस आते हैं. जो मेरी लाइफ में आया वो तो बस एक छोटी सी बात ही थी, बट स्टिल कंपेयर नहीं कर सकते. सबकी अलग अलग मेंटल एबिलिटीज़ होती है. सो यस, उस पॉइंट पे मैं बहुत ज़्यादा हार गई थी, बहुत ज़्यादा मेंटली अच्छा फील नहीं कर रही थी. एंड शायद उस दिन मैं वो वीडियो नहीं बनाती तो और भी अच्छा फील नहीं करती मैं. बट उस वीडियो के बाद और उन कमेंट्स के बाद, ऑल्दो वो बहुत कम कमेंट्स थे, बट स्टिल I kept it inside my heart for a long period of time. That gave me a lot of hope that I can do this regardless of whatever the situation is. I started working out. I started writing journals. मैं अपना दिन ब्लॉक वाइज करना शुरू कर दी, वर्क ब्लॉक्स क्रिएट करने लग गई मैं. एंड उसके बाद पर्सनली बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए. अपनी स्किन पे ध्यान रखना शुरू कर दिया मैंने, और अपने स्लीप स्केड्यूल में स्टिल वर्क कर रही हूँ, क्योंकि इंजीनियर होना इट्स लाइक यू डोंट हैव अ स्लीप स्केड्यूल, यू डोंट इवन स्लीप समटाइम्स, एंड व्हेन यू स्लीप लाइक फॉर डेज. एनीवेज, तो अब मैं उस चीज़ से फ्री हो चुकी हूँ. सो मैं स्टिल उसी जर्नी पे हूँ, जर्नी टुवर्ड्स हीलिंग, सेल्फ अश्योरेंस एंड सेल्फ वर्थ. एंड लेट्स सी कि मेरी लाइफ आगे जाके क्या टर्न आउट होती है. एंड अभी मैं अपना पूरा ट्राई करूँगी कि मैं अपनी लाइफ से आप लोगों को भी कनेक्ट रखूँ. एंड आने वाले जितने भी मंथ्स मैं अपनी लाइफ फेस करने वाली हूँ, आप लोग के साथ फेस करूँ. इफ़ I am on that vibration, if I am working hard daily, if I am giving my 100% best, I'm damn sure I'll get it. So yes, this is another thing, and I am on the journey to get physically fit. Like I really want to get strong enough to just climb mountains and hike, because ये भी मेरा एक सपना है कि मुझे ट्रैवल करना है. वो सारे सपने मैंने जो उस वीडियो में मेंशन किए थे वो सब मैं फुलफिल करने की राह पे हूँ. एंड आई होप कि यू गाइज आर ऑल्सो ऑन दैट जर्नी. एंड इफ नॉट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. जस्ट गिव योर सेल्फ दैट सेचुरेशन पॉइंट. आई नो इट्स वर्स्ट, बट आई बिलीव कि जब तक कि आपकी लाइफ में आप ज़ीरो पे नहीं पहुंचते हो, आप वो विजन ही नहीं देख सकते ऊपर जाने का, बिकॉज यू आर ऑलरेडी ऊपर. हाउ कैन यू लाइक और कितना ऊपर देखोगे? सो यू हैव टू कम डाउन टू ज़ीरो टू लुक अप टू दैट लेवल एंड जस्ट ट्राई टू क्लाइंब इट अप. सो येस, टुडे इज day 160 and I am feeling strong mentally, not physically yet, but still I'm going to try my best. And career wise I'm going all set and good, and relationships wise everybody around me I am capable of loving them right now, because I am loving myself right now, that's why. So yes, also मेरे बाल भी काफ़ी बढ़ चुके हैं. Like this is also one thing that I should share it with you guys. मेरे बाल पहले इतने थे, इतने बढ़ चुके हैं. मैंने अभी recently कट भी करवाए. And ignore the waves because it's humidity, and I am Monica from Friends. Humidity, like if you guys have seen Friends, you have seen Monica. Humidity में उसके बाल कैसे हो जाते हैं. It's same with me. मेरे ठंड में straight बाल रहता है, and humidity में it gets this. You guys in next video maybe, and maybe next video is about Griha Pravesh. So I hope you guys will enjoy it.